Welcome to another episode of Legal Update, where we will discuss narco-analysis, which is voluntary but not a right. So why was this in news? Recently, the Supreme Court in Amlesh Kumar versus the State of Bihar held that an accused person has the right to voluntarily undergo a narco-analysis test subject to the court's permission. The decision highlights the conditions under which a test may be conducted, ensuring the protection of constitutional rights. Background of the case. The case involved the Patna High Court accepting the submission of the sub-divisional police officer for conducting a narco-analysis test on all accused in a dowry death case. The appellant, a husband accused of dowry death, opposed the High Court's decision, claiming that such a test violated his constitutional rights under Article 21 as per the Selvi versus State of Karnataka 2010 case. The Supreme Court had to address three key issues. A. Whether the High Court was right in accepting the narco-analysis test submission. B. Whether a voluntary narco-analysis test could be sought by an accused. C. Whether such a test can be considered as the sole basis for conviction. Court observation. A bench of Justices Sanjay Karol and P.B. Varale observed that while an accused can voluntarily undergo a narco-analysis test, it should happen only at the appropriate stage of the trial where the accused is leading evidence. The court emphasized that the right to undergo such a test is not absolute and must be subject to factors like free consent, appropriate safeguards, and the circumstances of the case. The Supreme Court concluded that the High Court was wrong in accepting the submission for a mandatory narco-analysis test in a bail application. The court reiterated that any involuntary narco-analysis test is unconstitutional and violates Article 20, Clause 3 and Article 21 of the Constitution. Provisions involved. Article 20, Clause 3 of the Indian Constitution protects individuals from being forced to be a witness against themselves, ensuring that no one can be compelled to give evidence that might incriminate them. Section 27 of the Indian Evidence Act allows the admissibility of information discovered as a result of a voluntary narco-analysis test, but not as the sole basis for conviction. The Supreme Court held that the evidentiary value of information obtained through a voluntary narco-analysis test, while admissible with proper safeguards, cannot form the sole basis for conviction. It must be corroborated by additional evidence. This reaffirmed its ruling in Vinobhai versus State of Kerala, rejecting conviction based solely on narco test findings. Now, let us look at a practice question. Which section of the Indian Evidence Act deals with the admissibility of information discovered due to voluntary narco-analysis? A. Section 25, B. Section 27, C. Section 32, D. Section 65. Provide your answers in the comment section. नार्को विश्लेषण स्वैच्छिक लेकिन अधिकार नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी आरोपी व्यक्ति को न्यायालय की अनुमति के अधीन स्वेच्छा से नार्को विश्लेषण परीक्षण करने का अधिकार है। निर्णय में उन शर्तों पर प्रकाश डाला गया है जिनके तहत ऐसा परीक्षण किया जा सकता है जिससे संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब समझ लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि को। यह मामला पटना उच्च न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के एक मामले में सभी आरोपियों पर नार्को विश्लेषण परीक्षण कराने के लिए उप विभागीय पुलिस अधिकारी की दलील को स्वीकार करने से संबंधित था। दहेज हत्या के आरोपी पति अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध किया तथा दावा किया कि सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले के अनुसार इस प्रकार का परीक्षण अनुच्छेद 21 के तहत उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय को 3 प्रमुख मुद्दों पर विचार करना था। क्या उच्च न्यायालय द्वारा नार्को विश्लेषण परीक्षण प्रस्तुत करने को स्वीकार करना सही था? क्या अभियुक्त द्वारा स्वैच्छिक नार्को विश्लेषण परीक्षण की मांग की जा सकती है? क्या इस तरह की परीक्षण को दोष सिद्धि के लिए एकमात्र आधार माना जा सकता है? न्यायालय की टिप्पणी।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पीवी वराले की पीठ ने कहा कि हालांकि एक अभियुक्त शिक्षा से नार्को विश्लेषण परीक्षण करा सकता है, लेकिन यह परीक्षण केवल मुकदमे के उचित चरण में ही होना चाहिए जब अभियुक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हो। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के परीक्षण से गुजरने का अधिकार पूर्णतः निरर्थक नहीं है तथा यह स्वतंत्र सहमति, उचित सुरक्षा उपायों तथा मामले की परिस्थितियों जैसे कारकों के अधीन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जमानत याचिका में अनिवार्य नार्को विश्लेषण परीक्षण के लिए प्रस्तुत अनुरोध को स्वीकार करके उच्च न्यायालय गलत था। न्यायालय ने दोहराया कि कोई भी अनैच्छिक नार्को विश्लेषण परीक्षण असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। शामिल प्रावधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) व्यक्तियों को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी ऐसे साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो उसे दोषी ठहराए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 स्वैच्छिक नार्को विश्लेषण परीक्षण के परिणाम स्वरूप प्राप्त जानकारी को स्वीकार्यता प्रदान करती है, लेकिन इसे दोष सिद्धि के एकमात्र आधार के रूप में नहीं माना जा सकता। संबंधित केस। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वैच्छिक नार्को विश्लेषण परीक्षण के माध्यम से प्राप्त जानकारी का साक्ष्य मूल उचित सुरक्षा उपायों के साथ स्वीकार्य होने के बावजूद दोष सिद्धि के लिए एकमात्र आधार नहीं बन सकता। इसे अतिरिक्त साक्ष्यों द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए। इसने विनोभाई बनाम केरल राज्य में अपने फैसले की पुष्टि की, जिसमें केवल नार्को परीक्षण निष्कर्षों के आधार पर दोष सिद्धि को खारिज कर दिया गया था। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा स्वैच्छिक नार्को विश्लेषण के कारण प्राप्त सूचना की स्वीकार्यता से संबंधित है? ए धारा 25, बी धारा 27, सी धारा 32, डी धारा 65। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।